Hello, physios. Welcome back to Believe in Therapy. I'm a Dr. Neha, and today's start a very important topic, orthosis. So, before we start today's class, I want all of you to understand one very important thing. Like, orthosis is not just a small topics. Orthosis is not just a theory. Like, orthosis is a core subject for exercise therapy, orthopedics, rehabilitations, and biomechanics. So, if you are preparing for AIMS, DSSP, GSSB, SAI, MPT entrance, or any competitive exam. So I can confidently tell you questions from a orthosis are guaranteed in your exam. So many students like lose marks not because this topic is difficult, but because their basic concept of general orthosis are weak. So today's lecture is a foundations level. If your foundation is strong, so spinal upper limbs and lower limbs orthosis will become easy. So please listen carefully. Today's class is extremely important for your exam as well as your clinical practice. So now let's begin. सो ऑर्थोसिस एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि हम अप्लाइड करते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट्स पर लगाते हैं जिससे कि हम बॉडी को सपोर्ट्स दे सकें एंड अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके, कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट्स है उसे कंट्रोल किया जा सके एंड डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट किया जा सके और हमारे जो बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कर सके, मीन्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, राइट. इन रिहैबिलिटेशंस लाइक मेन use of orthosis. So orthosis is external device applied to the body to supports, align, prevent or corrective deformities for to improve functions of a body parts. So orthosis divide on a two classifications like based on a mobility and based on a body reasons. So based on a mobility, two types: static orthosis and dynamic orthosis. So static orthosis like no any movements and dynamic orthosis like movements. Okay, and based on body regions like upper limb orthosis, lower limb orthosis and spinal orthosis. So now come to a very important like functions of an orthosis. So orthosis का main functions like big muscles को support provide करना, joints को stable रखना, कोई भी abnormal movements है उनको control करना and कोई भी pain areas है उसको pain को reduce करना और पेशेंट्स को जितना ज़्यादा हो सके उसको फंक्शनली बनाना, लाइक इंडिपेंडेंट बनाना, मेन पर्पस मेन फंक्शन है ऑर्थोसिस का. सो ऑर्थोसिस लाइक सपोर्ट्स प्रोवाइड एज अ वीक और पैरालाइज्ड मसल्स, immobilize our joints after a injuries or a surgery, okay, and provide as a corrections like prevent a deformity and correct any of the deformities, assist movements like in a neurological conditions if a need to a dynamic or a need to a static, so help in assist our movements, reduce pain via offloading stress. So the main functions. Now come to a very important part, principles. Like orthosis work करता है हमारे कुछ बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स के बेस पे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. Okay, so principle of orthosis, orthosis externally device used to support, align, prevent or correct deformities in a neuromuscular or a musculoskeletal system. So first is a support. जब भी कोई मसल्स वीक होती है या कोई जॉइंट्स अनस्टेबल होते हैं तो ऑर्थोसिस का हम यूज करते हैं फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट्स के लिए, राइट. फॉर एग्जांपल इफ लाइक फुट ड्रॉप पेशेंट, सो डॉर्सिफ्लेक्सर मसल्स वीक होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एएफओ ऑर्थोसिस लाइक एंकल फुट ऑर्थोसिस का यूज करते हैं एंकल को सपोर्ट्स के लिए जिससे कि पेशेंट सेफली वॉक कर सके, राइट. सो सपोर्ट्स लाइक प्रोवाइड एक्सटर्नल सपोर्ट टू अ वीक और अ पैरालाइज्ड मसल्स like a reduce stress on a joints and a soft tissues. For example, AFO supporting weak ankle dorsiflexor in the conditions like a foot drop. Okay. Second principles like alignments. As a alignments is an important part in orthosis. Like orthosis क्या करते हैं, body parts को normal anatomical alignment पे maintain करके रखता है. If a conditions like for example if a Zanu-Belgum or a Barham conditions, okay, so use a knee brace. So knee brace actually used for a alignment जो कि मेंटेन करके रखता है जबकि हमारा जो एबनॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारे ज्वाइंट्स पे ना जाए, राइट. मीन्स हमारे नी ज्वाइंट्स पे उतना स्ट्रेस ना रहे उसको हम प्रिवेंट करने के लिए नी ब्रश का यूज करते हैं. नी ब्रश क्या करता है, हमारे जो नी का अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक स्कॉलियोसिस कंडीशन, सो स्कॉलियोसिस कंडीशंस में हम मिल वॉक है वॉस्टन ब्रशेस का यूज करते हैं फॉर स्पाइन के अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए.
Okay, so alignments like maintain proper anatomical alignment on our body segments, prevent or correct deformities. For example, care for maintaining a knee alignment in a Zen valgum. So I think as a clear support and alignments. Third principle is control of our motions. सो ऑर्थोसिस का काम होता है मेनली एज अ अनवांटेड मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना और रिक्वायर्ड मूवमेंट्स को अलाउ करना, राइट? लाइक ऑर्थोसिस कैन अलाउ emotions, limit emotions, assist emotions, and prevent emotions. For example, like knee in a hyperextensions. सो जो हाइपर एक्सटेंशन के पेशेंट्स होते हैं तो हम उसके लिए सजेस्ट करते हैं नी ऑर्थोसिस, जो कि हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है. मीन्स हम जो लाइक केयरफुल यूज कर रहे हैं वो इस टाइप का होता है जो कि हमारे जो अनवांटेड मूवमेंट्स लाइक नी इन हाइपर एक्सटेंशन, सो ये इज अनवांटेड, सो उसको प्रिवेंट करके रखेगा एंड हमारे जो नी का फ्लेक्शन है एंड नॉर्मल एक्सटेंशन मूवमेंट है उसको असिस्ट करेगा, उसको अलाउ करेगा. Okay, so I think as a clear like hinge knee brace allow a flexion and extension movements, but like as a prevent like a hyperextensions. Okay, and spinal brace like limit a trunk movements. So जितना हमें need है, जितना required movements है उसको ही allow करना and unwanted जो भी movements है उनको restrict करता है. The main principle हमारा control of motions of a orthosis, right? Now come to corrections of deformity. So corrections of deformity as a work on a principle of a Jordan classifications. Jordan classifications बहुत ही important है actually, is a working on a 3 points patterns, 3 point pressures like 2 as a counter force and 1 as a corrective force. ओके, सो अभी हम नेक्स्ट आगे समझेंगे जॉर्डन क्लासिफिकेशंस. सो जॉर्डन क्लासिफिकेशंस लाइक वर्क ऑन अ बेस प्रिंसिपल करेक्शंस ऑफ अ डिफॉर्मिटी. अगर डिफॉर्मिटी फ्लेक्सिबल स्टेज में है तो ऑर्थोसिस यूज करके हम उसे ग्रेजुअली करेक्शंस कर सकते हैं, राइट? इफ लाइक कंडीशंस बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस है तो फिर तो मे बी नीड ऑन अ सर्जरी. सो करेक्शंस ऑफ डिफॉर्मिटी लाइक अप्लाई अ कंट्रोल फोर्स ओवर टाइम टू अ करेक्ट डिफॉर्मिटीज and based on a 3 points pressure principle. So for example like scoliosis brace and other like knee पे जो भी हम ब्रेस यूज कर रहे हैं जन वेलगम बैरम के लिए एंड कोई भी एक्चुअली यूज करते हैं जैसे कि फुट पे वेलगम एंड बैरस लाइक, तो उसमें क्या होता है कि 2 काउंटरेक्शंस फोर्स लगता है एंड 1 हमारा जो करेक्टिव फोर्स होता है. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक करेक्शंस डिफॉर्मिटी इफ अर्ली फिंगर फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर लाइक मैलेट फिंगर फ्लेक्चर्स कॉन्ट्रैक्चर, सो यूज एज अ डायनेमिक और अ स्टैटिक, राइट? सो भी अकॉर्डिंग टू अ कंडीशंस स्टैटिक एंड डायनेमिक यूज करते हैं. अर्ली फिंगर फ्लेक्शंस कॉन्टेक्चर्स में हम डायनेमिक फिंगर स्प्लिंट का यूज करते हैं. सो ये क्या करता है, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं, राइट? सो आई थिंक एज अ क्लियर करेक्शंस ऑफ डिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल ऑफ मोशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोसिस. इन प्रिंसिपल के बेस पे ही हमारा ऑर्थोसिस वर्क करता है. ओके, नाउ कम टू फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिवेंशंस ऑफ अ डिफॉर्मिटीज. सो प्रिवेंशंस लाइक कभी कभी डिफॉर्मिटी होती नहीं है बट इन अ फ्यूचर रिस्क होता है कि डिफॉर्मिटी एज अ डेवलप हो सकती है. ओके, लाइक जैसे कि any of the fractures condition, any of the stroke patients, so maybe as a chance for risk of deformity. So deformity को prevent करने के लिए as a use करते हैं हम orthosis. So for example like stroke patients जिसमें कि hand initially normal होता है but लेकिन conditions ऐसे develop हो जाती है, स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है. तो स्पास्टिसिटी से क्या हो सकता है कि डिफॉर्मिटी मे भी हो सकते हैं, राइट? सो उस डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट यूज करते हैं जो कि इजीली डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट कर सकता है. तो आई थिंक एज अ क्लियर कि प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी मीन्स अभी डिफॉर्मिटी नहीं है बट इन अ फ्यूचर रिस्क है तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए लाइक यूज करते हैं. So prevention of deformity like prevent development of a contextuals and malalignments, especially important in a neurological conditions. Example for a night splint in a stroke patients. Right? I think as a clear. Now come to a relief of patients. So orthosis work on a relief of pain like प्रॉपर सपोर्ट और अलाइनमेंट से हम ज्वाइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज पर लोड कम कर सकते हैं, राइट? इफ अलाइनमेंट मेंटेन होगा तो पेशेंट्स को पेन नहीं होगा, जिससे कि पेन रिलीफ रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट्स लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस नी में
पेन है तो हम क्या करते हैं, नी ब्रेस का यूज करते हैं। नी ब्रेस यूज करके हम पेशेंट्स के नी जॉइंट पे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे कि पेन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो ऑर्थोसिस वर्क ऑन अ रिलीफ ऑफ पेन, so reduce the abnormal joints motion, decrease the mechanical stress and improve the stability. For example, lumbar corset for used for a lower back pain, and knee brace used for osteoarthritis, knee osteoarthritis. Okay, I think is clear, like fifth and sixth principles. Now come to seventh principle, like orthosis work on a improvement of a functions. ओके, सो ऑर्थोसिस का फाइनल जो मेन एम होता है पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट्स लाइक अ फुट ड्रॉप, सो पेशेंट्स बिना एएफओ के गिर सकता है, उस रिस्क ऑफ अ फॉलिंग। सो एएफओ के साथ वो वॉकिंग पैटर्न और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो गए। सो मेन लाइक हमारा जो ऑर्थोसिस का प्रिंसिपल है हम यूज कर रहे हैं, तो इस बेस पे भी यूज करते हैं कि पेशेंट्स का फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली रह सके। ओके, इनहेंस कर सके पेशेंट्स अपना गेट, पोस्चर्स एंड बैलेंस को मेंटेन रख सके, लाइक एडियल एक्टिविटीज, and compensate for a muscles weakness, for example AFO improving a walking in a foot drop. Eight principles like force applications, biomechanical principles like work on a Jordan classifications. So force applications like जो भी आप ऑर्थोसिस यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो फोर्स को लाइक मस्ट बी बैलेंस हो सके एंड वेल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बॉडी में जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स का पोस्चर्स फॉल्टी पोस्चर्स डेवलप हो जाए। सो ऑर्थोसिस कंट्रोल फोर्स अप्लाई करता है। ओके, फॉर एग्जांपल करेक्टिव स्पाइनल ब्रेस जो कि कंट्रोल फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि हमारी जो स्पाइन है वो ग्रेजुअली करेक्ट हो सके और कोई भी स्किन डैमेज ना हो। इफ लाइक कंट्रोल फोर्स नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी स्पाइन अलाइनमेंट मेंटेन हो सके, पर उससे क्या होगा, हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेस जाएगा, मसल्स लाइक स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन इंजरीज हो सकती है। तो क्या होता है कि कंट्रोल फोर्स अप्लाई करता है, धीरे धीरे हम उस फोर्स को इंक्रीज करते हैं जिससे कि धीरे धीरे हमारा करेक्शंस हो सके, ग्रेजुअली करेक्शंस देखने को मिले। Okay, so I think as I clear, like use in a 3-point pressure system, and force must be a balance, well distributed, apply over a large area to avoid a pressure source. Okay, next come to a ninth principle, comfort and safety. सो ऑर्थोसिस इस टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए, लाइक प्रेशर सोर्स नहीं बनना चाहिए एंड कोई भी हमारे सर्कुलेशंस को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। इफ लाइक एएफओ टाइट होगा, एंकल फुट ऑर्थोसिस टाइट होगा तो स्किन रेडनेस और अल्सर्स में भी चांस है। सो इसलिए कंफर्ट एंड सेफ्टी पे बहुत ध्यान देते हैं। मस्ट बी लाइट वेट होना चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, इजी टू बियर एंड रिमूव, एंड नो एनी स्किन इरिटेशंस और प्रेशर पॉइंट्स। सो आई थिंक यू नो कि ऑर्थोसिस में भी लाइट वेटेड होगा तो पेशेंट्स इजीली उसको यूज करेगा, प्रॉपर फिटिंग होगा तो करेक्ट अलाइनमेंट रहेगा, इजी टू बियर होगा तो पेशेंट्स इजीली उसे यूज कर सकेगा। ओके, सो ऑर्थोसिस इस टाइप से डिजाइन किए जाते हैं कि कंफर्ट एंड सेफ्टी पे भी पेशेंट्स के ध्यान रहे। नेक्स्ट इज कॉस्मोसिस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, लाइक ऑर्थोसिस बल्कि या अनअट्रैक्टिव होगा तो पेशेंट्स उसे यूज नहीं करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्लिम एंड लाइट वेट एएफओ पेशेंट्स शूज के अंदर इजिली पहन सकता है, इसलिए ये बेटर लाइक यूज में रहता है, कोई भी पेशेंट्स की कंप्लेन नहीं होती है। सो कॉस्मेटिक्स और एक्सेप्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, लाइक अपीयरेंस मैटर फॉर अ पेशेंट्स कंप्लेंट्स, should allow a normal clothing and social comfort. Okay, next is easy and use, like ऑर्थोसिस पेशेंट्स के लिए सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए जिससे कि वो इजीली उसको यूज कर सके और कोई भी ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए कि पेशेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है किसी और से हेल्प लेनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्डरली पेशेंट्स है तो एल्डरली पेशेंट्स के लिए एज अ वेलक्रो स्ट्रब वाला ब्रश या स्प्रिंट देना चाहिए जो कि इजीली यूज कर सके। अगर कोई बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जिससे कि हम उसे इजीली यूज कर सके। तो आई थिंक एज अ क्लियर कि ये हमारे 11th मेन प्रिंसिपल्स थे ऑर्थोसिस के। इन प्रिंसिपल के बेस्ड पे ऑर्थोसिस वर्क करता है। ओके, सो आई थिंक क्लियर। नाउ कम टू जॉर्डन प्रिंसिपल जिसकी हम बहुत ज्यादा आपसे बात कर रहे थे। लाइक अकॉर्डिंग टू अ जॉर्डन, लाइक कोई भी ऑर्थोसिस डिफॉर्मिटी
जो भी करेक्ट करता है तो वो यूज करता है इस मेन प्रिंसिपल्स लाइक 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम. सो 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में वन प्राइमरी करेक्टिव फोर्स होता है, दो हमारे करेक्टिव फोर्स होते हैं. Okay, one primary force is applied on a directions of corrections and two counteractions force applied on a opposite directions. So all three force lies in a same plane. ये तीनों फोर्स हम सेम प्लेन में लगाते हैं जिससे कि हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सके. ओके, मीन्स तीन जगह हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए. तो इस प्रिंसिपल्स में क्या है कि इसका स्टेट है करेक्शंस और कंट्रोल ऑफ अ डिफॉर्मिटी इज अचीव्ड बाय applying a three force of a body segments. Okay, so I think as a clear, one primary force applied on a directions of correction and two counter force applied on a opposite directions. So all three force lies in a same plane. So this system keep in a segment stable and a balance. Like force distributions होता है, first हमारा counter force one side होगा, middle में हमारा corrective force होगा and then हमारा counter force होगा. Okay, so for example समझते हैं Zanu valgum like knock knee conditions. Zanu valgum like नी मीडियल साइड कोलैप्स करता है, राइट. सो ऑर्थोसिस फोर्स एप्लीकेशंस क्या होगा, 3 पॉइंट्स का. करेक्टिव फोर्स जो होता है नी के लेटरल साइड्स पे रहेगा एंड काउंटर फोर्स जो थाई और लेग के मीडियल साइड्स पे होगा, इसलिए नी ग्रेजुअली लाइक न्यूट्रल अलाइनमेंट की तरफ आएगा. तो ये पूरा मैकेनिज्म है वो 3 पॉइंट्स प्रेशर सिस्टम को फॉलो करता है. आई थिंक एज अ क्लियर नेक्स्ट एग्जांपल भी समझ लेते हैं लाइक फुट डिफॉर्मिटी, बैरस और बेलगस डिफॉर्मिटी. सो फुट डिफॉर्मिटी में क्या है कि हम अगर वेरस और बेलगस डिफॉर्मिटी तो हम क्या करें, मिड फुट को करेक्ट करते हैं, राइट. सो मिड फुट पर क्या करेंगे, करेक्टिव फोर्स लगेगा एंड हील और 4 फुट साइड क्या होगा, काउंटर फोर्स लगेगा, राइट. तो इससे क्या है कि 4 फुट का जो अलाइनमेंट है उसे हम करेक्ट कर सकते हैं और वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा. तो आई थिंक एज अ क्लियर जॉर्डन प्रिंसिपल्स. नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टैटिक ऑर्थोसिस एंड अ डायनेमिक ऑर्थोसिस. तो यू नो स्टैटिक ऑर्थोसिस वो होते हैं जो कि जॉइंट्स मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते, लाइक वो स्टैटिक होते हैं और जॉइंट्स को फिक्स पोजीशंस में या इमोबिलाइज में रखते हैं. ओके, सो स्टैटिक ऑर्थोसिस डज नॉट अलाउ मूवमेंट्स एट द जॉइंट्स, इट होल्ड द जॉइंट्स इन अ फिक्स पोजीशंस. जब भी लाइक हम कब यूज करते हैं, जब हमें रेस्ट चाहिए, हीलिंग प्रोसेस होनी चाहिए, हीलिंग को मेंटेन करना है या कोई प्रोटेक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑपरेटिव हैंड सर्जरी. सो पोस्ट ऑपरेटिव हैंड सर्जरी के बाद रेस्टिंग हैंड स्प्रिंट यूज किया जाता है जिससे कि मूवमेंट्स बिल्कुल ना हो, लाइक इमोबिलाइज रहे, एक ही पोजीशन में फिक्स रहे, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो सके. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट है, नाइट स्प्लिंट है, सर्वाइकल कॉलर्स है, तो ये क्या है, एक स्टैटिक ऑर्थोसिस है जो कि मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं. मेन पर्पस लाइक इमोबिलाइजेशंस, रेस्ट एंड प्रोटेक्शंस, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज and maintain alignments. I think as a clear main indications and fractures conditions, post-operative conditions, inflammations, and any of a muscles paralysis conditions. Example like static wrist splint, resting hand splint, AFO, cervical collar, night splint, resting splint. So is all are static orthosis. So I think as a clear in the next videos spinal orthosis and upper limb and lower limb orthosis. So इसमें हम static and dynamic orthosis in detail discuss करेंगे. Okay. Now come to a second like dynamic orthosis. So dynamic orthosis, you know, like dynamic orthosis वो होते हैं जो कि movements को अलाउ करते हैं, कंट्रोल मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं, लाइक जो भी रिक्वायर्ड मूवमेंट्स है उनको अलाउ करते हैं यूजिंग अ स्प्रिंग्स, इलास्टिक बैंडेज और अ हिंजेस टाइप, right. So dynamic orthosis is allow a control movement using a static band, spring or a hinges. Main purpose used for assist a weak muscles, like जब भी हमें मसल्स असिस्टेंस चाहिए, जब भी हमें कोई मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना है, लाइक रेंज ऑफ मोशंस को इंक्रीज करना है, सपोज रिस्ट जॉइंट्स लाइक एज अ कॉकअप स्प्रिंट यूज करते हैं हम लोग, तो ये क्या करता है कि हमारे रेंज ऑफ मोशंस को भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है. लाइक रेडियल नर्व पल्सेस है, अल्नर नर्व पल्सेस है, तो इसमें हम डायनेमिक स्प्रिंट्स यूज करते हैं, राइट. सो ये क्या करते हैं, मसल्स असिस्टेंस जब भी हमें चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं, मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना है तो हम इसका यूज करते हैं, कोई भी फंक्शंस ट्रेनिंग करानी हो. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक रेडियल नर्व पल्सेस. सो रेडियल नर्व पल्सेस में हम डायनेमिक रिस्ट हैंड स्प्रिंट यूज करते हैं जो कि एक्सटेंशन मूवमेंट को असिस्ट करता है. ओके, so I think clear main purpose is to assist our weak muscles, increase our range of motions, improve our functions and prevent any of our stiffness. Next is indications. So indications like किन किन conditions में
इंडिकेट है मसल्स वीकनेस के लिए, नर्व इंजरीज के लिए, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक स्प्लिंट, सो डायनेमिक फिंगर स्प्लिंट, dynamic wrist extension is splint, hinge knee brace as a dorsiflexor assist AFO, dynamic finger splint and tendinous splints. So dynamic orthosis, I think, is you know as a controlled movements. Okay, so I think clear, like static orthosis movements को allow नहीं करता है, dynamic orthosis control movements को allow करता है. Now come to a very important part as a regional classifications of a orthosis. So regional classifications like classified according anatomical areas like fitted with the orthosis, like spinal orthosis, upper limb extremities and lower extremities. So cervical orthosis like is a part of spinal orthosis, cervical orthosis, head cervical orthosis जिसको हम SCO बोलते हैं, head cervical thoracic orthosis SCTO, sacral orthosis, lumbosacral orthosis, thoracolumbosacral orthosis. So in the next videos हम explain करेंगे सारे spinal orthosis को in detail. Okay, and next is the upper extremity orthosis. Upper extremities orthosis like shoulder and arm orthosis, elbow orthosis, wrist orthosis and hand orthosis. Next come to a lower extremities orthosis like foot orthosis, ankle foot orthosis, knee ankle foot orthosis and hip knee ankle foot orthosis. So these all are regional classifications. So I think as a clear the intro of a orthosis. So the base of a स्पाइनल अपर लिम एंड लोअर लिम ऑर्थोसिस क्लासेस का ये बेस है जो कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्रो अच्छे से समझ आना चाहिए क्योंकि ये इसका बेस है. आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो नेक्स्ट क्लास बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय, टेक केयर.